Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is our lecture number 15. Now we are studying numerical differentiation. In lecture number 14, we have studied the method Stirling's interpolation formula to find the first order and second order derivatives of an unknown function from the given table. So the topic of this lecture is examples of derivatives by using Stirling interpolation formula. We will do some examples to find the first order derivative and second order derivatives by using Stirling's interpolation formula, which we have studied in previous lecture. So the first example is find y prime and y double prime at 0.2 using Stirling's interpolation formula from this data. You can see that the values of x are equally distributed, and you have to find the derivative and second derivative at 0.2, which is a central value. So you can use any central difference formula, but here we are bound to use Stirling's interpolation formula as it is given in the question. So we move to the solution. First of all, we have to decide what is the value of x naught. As in derivation, we have talked about this point that when x is uh, given, you will first check that to which value it is close. In fact, it is closest. So if you look at here, 0.2 is exactly equal to this point. So this value of x will be taken as x naught. So here x naught is equal to 0.2. H is the equal spacing. You can see that in this case h is equal to 0.1 and x is the given value of independent variable, that is 0.2. तो इस तरह से आपने x नॉट h और x जो है वो आपने लिख लिए. उसके बाद हमें p की वैल्यू चाहिए होती है. तो p आपके पास ये फार्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर h. इसके अंदर अगर आप x और x नॉट और h की वैल्यू पुट कर दें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p. So in this case, which is a special case when p is 0, as we have studied in the derivation, that there is a special case when x is equal to x naught. So this example is basically reflecting the special case. So after deciding x naught, we will construct the table of central differences. So you can see that here the central value is selected as 0.2. So this yellow line is your central line, and you will use these values which are on central line and above and below the central line in your method. So this is the table. You know how we can construct it. आप इस value के इसमें से minus करें, ये value आ जाएगी. Similarly this minus this, ये आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से आपने टेबल बना लिया, कंप्लीट कर लिया. अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एक्स नॉट, सो दिस विल बी एक्स माइनस वन एंड दिस विल बी एक्स माइनस टू. सिमिलरली नीचे क्या होगा, एक्स नॉट के नीचे एक्स वन होगा, फिर एक्स टू होगा, फिर एक्स थ्री होगा. इसी तरह ये एक्स माइनस टू है तो ये वाई माइनस टू होगा, ये एक्स माइनस वन है तो ये वाई माइनस वन होगा. ठीक है. और फॉरवर्ड डिफरेंस ही हम यूज़ कर रहे हैं तो ये डेल्टा वाई माइनस टू से स्टार्ट होगा, फिर नीचे डेल्टा वाई माइनस वन, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू. सिमिलरली हर कॉलम के अंदर जो आपकी पहली वैल्यू होगी वो हमेशा उसका सबस्क्रिप्ट माइनस टू से स्टार्ट होगा और नीचे वो वन बाय वन इंक्रीज करता जाएगा. तो इस तरह से ये टेबल का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि हम वैल्यू को किस तरह से पिक करते हैं, इस वैल्यू का क्या नाम है, ये किसकी वैल्यू है, ये सारा चीज़ें आपको ऑलरेडी इसकी अवेयरनेस है कि हम किस तरह से इनको फाइंड करते हैं. सो बाय स्टर्लिंग्स फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फॉर एग्जांपल हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं
तो उसका फार्मूला जो हमने पीछे डिराइव किया था फॉर स्पेशल केस व्हेन p इज इक्वल टू 0, तो आप वही डायरेक्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले p वाला फार्मूला लिख लें, ठीक है, और फिर उसको आप जो है वो p इक्वल टू 0 पुट करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसी तरह यूज़ कर लें डायरेक्ट स्पेशल केस वाला फार्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस फार्मूला y प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर h इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 6 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 ओवर 2 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर p आपको नज़र नहीं आ रहा, इसकी रीज़न आपको पता है क्योंकि p हमारा इस क्वेश्चन के अंदर 0 है, बिकॉज x इज इक्वल टू x नॉट। सो इस वजह से हमने जो फार्मूला लिखा है वो p इक्वल टू 0 के लिए डायरेक्ट वही वाला यूज़ कर लिया जो हमने स्पेशल केस के अंदर लिखा था। अब इसमें h की वैल्यू एक तो आपको पुट करनी होगी, दूसरा आपको ये डेल्टास जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो पीछे आपने बनाया है उसी को देख के आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो मेन अब काम आपका यही है कि आप ये वैल्यू सही सी पुट करें, डेल्टा वाई नॉट डेल्टा वाई माइनस 1। तो ये टेबल की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डेल्टा वाई नॉट अगर हम टेबल के अंदर देखें तो क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज डेल्टा वाई माइनस 2, दिस इज डेल्टा वाई माइनस 1, दिस इज डेल्टा वाई नॉट। तो दिस इज डेल्टा वाई नॉट 0.10318 एंड दिस इज डेल्टा वाई माइनस 1। ये दो वैल्यू आपके फार्मूला के अंदर पुट होनी है, इस वजह से इन दोनों पे हम फोकस कर रहे हैं। दिस इज डेल्टा वाई माइनस 1, दिस इज डेल्टा वाई नॉट। ये आगे आप देखें इनकी वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये देखें डेल्टा वाई माइनस 1 आपके पास आ गया 0.10117, डेल्टा वाई नॉट आ गया 0.10318, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 ये भी हम उस टेबल में देख लेते हैं। दिस इज द कॉलम ऑफ डेल्टा क्यूब, so what is delta cube y minus 2, this is delta cube y minus 2, and what will be this will be delta cube y minus 1. So you can see that delta cube y minus 2 is 0.00101 and delta cube y minus 1 is 0.00105. We will verify. Okay, तो ये हमने वैल्यू जो है वो अपने डिफरेंस टेबल से जो है वो पिक कर ली हैं। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दें तो यू विल गेट द आंसर ऑफ y प्राइम। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, अब उनकी जो रेलेवेंट पोजीशंस हैं वहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं और h की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है। अब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0.2। यहाँ पर हमने पॉइंट भी मेंशन कर दिया कि किस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू निकाल रहे थे, तो दैट इज 0.2। तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा खुद से करके। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो तो आप सेकंड डेरिवेटिव वाला फार्मूला लिखें फॉर स्पेशल केस विच इज इक्वल टू 1 ओवर एच स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन बाई 12 डेल्टा 4 वाई माइनस 2। तो आगे भी इसके आगे भी टर्म्स होती हैं लेकिन हमने उनको इग्नोर किया हुआ है बिकॉज इन आवर टेबल द मैक्सिमम जो रेंज है आपके पास वो देखें डेल्टा 5 तक है, लेकिन डेल्टा 5 वैसे ही 0 है और उसने हमारे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर यूज़ भी नहीं होना। तो डेल्टा 4 तक ही हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इस वजह से हमने जो फार्मूला बनाया है सेकंड डेरिवेटिव के लिए वो डेल्टा 4 तक ही हमने लिख लिया है। ठीक है, अगली टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको इन दो डेल्टास की ज़रूरत है, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 और डेल्टा 4 वाई माइनस 2। तो ये हम टेबल में देख लेते हैं। चलें पहले हम यहाँ पे देख लें कि हमने क्या वैल्यू ली है। डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 विच इज़ 0.00201 और डेल्टा 4 वाई माइनस 2 0.00004। तो नाउ वी लुक फ्रॉम द टेबल। तो टेबल में देखें क्या यही वैल्यू है, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 0.00201, डेल्टा 4 वाई माइनस 2 0.0004। तो ये हमने यही वैल्यू यहाँ पर
यूज़ की है। ठीक हो गया, आप मज़ीद इसको चेक कर लीजिएगा। ये वैल्यू अब आप अपने पिछले फार्मूला के अंदर पुट करें और इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जब आपको दिया गया होगा, एक टेबल दिया गया होगा और आपको पॉइंट दिया होगा कि इस पॉइंट के ऊपर आप वैल्यू निकालें और वो पॉइंट आपकी सेंट्रल वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल हो, तो फिर आपका पी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और आप स्पेशल केस वाला फार्मूला जो है वो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते, आप पहले पी वाला फार्मूला लिख लें फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जिसके अंदर पी इन्वॉल्व होता है, और फिर बाद में आप कह दें कि वन पी is ज़ीरो, तो उसके बाद आपका जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली वो स्पेशल केस वाला डिराइव हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं या पी वाला फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं। तो यही मेथड है, इसी मेथड के थ्रू हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि बाज़ दफ़ा आपको एक्स जो है वो एक्स नॉट के इक्वल नहीं दिया गया होगा, बल्कि उसके करीब करीब कोई वैल्यू दी गई होगी। तो फॉर दिस वी सी नेक्स्ट एग्जांपल, compute the values of f prime at 3.1 and f double prime at 3.1 by using Stirling's formula। तो यहाँ पे आप देखें इसमें x की जो वैल्यूज़ हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो हमेशा आपने पहले चेक करना होता है कि आपके जो टेबल में x की वैल्यूज़ हों वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, सिर्फ x के ऊपर आपने फोकस करना होता है कि आपके x वैल्यूज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो अभी तक जितने हम मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला टू ऑनवर्ड, तो इनमें सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना वैल्यूज का ज़रूरी है। तो आप पहले ये इंश्योर करें कि आपके x की वैल्यूज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, then 4, then 5, so they are equally distributed। and what is the gap between two consecutive values? the gap is 1। ठीक है, 1 के बाद 2 है तो गैप कितना है, 1 है। इसी तरह 2 के बाद 3, गैप इज 1। तो h क्या होता है, आपका गैप होता है जो इक्वल स्पेसिंग होती है, दैट इज h। सो इन दिस क्वेश्चन h इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने x नॉट जो है वो डिसाइड करना होता है। तो वैसे नॉर्मली हमारी कोशिश यही होती है कि एक्स नॉट बिल्कुल जो सेंटर पे पड़ा हुआ है उसी को हम एक्स नॉट कंसिडर करें। बट इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक्स नॉट वो लें जो आपके एक्स के ज़्यादा क्लोज हो। उसमें फिर आप अपने सेंट्रल वैल्यू से हट भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको एक्स 4.1 दिया गया होता तो फिर आप एक्स नॉट ये वाला नहीं यूज़ करते बल्कि ये वाला यूज़ कर लेते। ठीक है, तो मतलब एक्स नॉट आपकी अपनी चॉइस है। इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स कि आपके एक्स की वैल्यू कौन सी गिवन है। तो उस हिसाब से फिर हम चलते हैं कि फिर अब हम एक्स नॉट जो है वो कौन सा चूज़ करें। लेकिन स्टर्लिंग फार्मूला के अंदर आपने एक चीज़ ये भी माइंड में रखनी है कि ये फार्मूला आपको एक्यूरेट आंसर देगा अगर आपका पी जो है वो किस रेंज में होगा, -0.25 से लेकर 0.25 तक। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर आपका पी होगा तो आपको ये फार्मूला बेस्ट आंसर देगा। बाकी आंसर आपको मिल जाएगा लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा अगर आपका पी उस रेंज से बाहर हो। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं हम। एक्स नॉट हमने क्या डिसाइड किया, 3, और यही करना भी चाहिए था क्योंकि हमारा एक्स क्या है, 3.1 है, और हमारा जो एक्स नॉट होगा वो उसके क्लोज होगा तो दैट इज़ 3। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वैसे भी सेंट्रल वैल्यू है, तो इट इज़ द आइडियल सिचुएशन कि अगर सेंट्रल वैल्यू ही को आप एक्स नॉट ले लें फिर आपका एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स नॉट को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर आपका एक्स नॉट एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर ना हो, मतलब अगर आपका एक्स इससे दूर हो यानी 4 के करीब होता या 2 के करीब होता तो फिर हम उनको भी एक्स नॉट ले सकते थे, क्योंकि हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा पी उस रेंज में आना चाहिए -0.25 से 0.25 के रेंज में। तो इट्स अप टू यू
आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप एक्स नॉट किसको चूज करें। तो अब आपने एक्स नॉट चूज कर दिया, दैट इज 3, एच इज 1, जो गैप होता है एक्स इज गिवन पॉइंट दैट इज 3.1। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड पी। तो पी का आपके पास फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। तो इस फार्मूले की मदद से हमेशा हम जो है वो पी फाइंड करते हैं। इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करें 3.1, एक्स नॉट -3, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 0.1, और नीचे क्या है एच, एच इज 1, सो पी आपका क्या आएगा 0.1 आ जाएगा। सो इट मीन्स के जो आपको स्टर्लिंग फार्मूला है वो एक्यूरेट आंसर देगा, क्योंकि आपका पी उसी रेंज के अंदर आ रहा है जो उस मेथड की मोस्ट आइडियल रेंज है, -0.25 टू 0.25। सो एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमने सेंटर किसको कहा हुआ है एक्स नॉट को, तो इट मीन्स के हमारे उससे ऊपर क्या होगा x-1 होगा, फिर उससे ऊपर x-2 होगा, सिमिलरली एक्स नॉट से नीचे x1 और फिर x2 आ जाएगा। तो x-2 क्या है 1 है, x-1 2 है, x नॉट 3 है, x1 4 है, x2 5 है। और जो आपको वैल्यू y की दी हुई है टेबल के अंदर वो एज इट इज़ इनके सामने पुट करते जाएं। 1 के सामने 0 था, 2 के सामने 1.4, 3 के सामने 3.2, 3.3, 4 के सामने 5.6, 5 के सामने 8.1। उसके बाद आपने क्या करना होता है, डेल्टा वाई निकालना होता है। उसका तरीका आपको पता है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दें, 1.4 माइनस 0 क्या आएगा 1.4 आ जाएगा। देन 3.3 माइनस 1.4 यू विल गेट 1.9, then 5.6 minus 3.3 you will get 2.3, and then 8.1 minus 5.6 you will get 2.5. Similarly delta square y कैसे आएगा 1.9 minus 1.4 0.5, 2.3 minus 1.9 0.4, 2.5 minus 2.3 0.2, and in next column delta cube कैसे आएगा 0.5 minus 0.5, sorry 0.4 minus 0.5 you will get minus 0.1. Similarly next value कैसे आएगी 0.2 minus 0.4 you will get minus 0.2, and in the last column this will be delta 4, 0 minus 0.2 minus minus plus 0.1 you will get minus 0.1. एक चीज आपने नोट की होगी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं वी विल कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ सेंट्रल डिफरेंसेस। तो दिस इज नॉट अ टेबल ऑफ सेंट्रल डिफरेंसेस, दिस इज अ टेबल ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस। सेंट्रल डिफरेंसेस हम सिर्फ इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि आपका जो एक्स नॉट है वो बिल्कुल सेंटर से चूज किया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ ये सेंस है जिस वजह से सेंट्रल का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड डिफरेंसेस का वर्ड यूज करें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये टेबल आप लोगों ने बना लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, फार्मूला लिखना है और फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। टेबल के अंदर से वैल्यू जो आपने उठानी है दैट इज़ द मेन टास्क, कि आपको पता होना चाहिए ये कौन सा डेल्टा है, ये कौन सा डेल्टा है, इसी तरह ये सारे डेल्टा के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। सो बाय स्टर्लिंग्स फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम उसका फार्मूला लिख लिया हमने, जो उसकी डेरिवेशन की थी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यू कैन सी dy by dx is equal to 1 over h into delta y naught plus delta y minus 1 over 2 plus p into delta square minus 1 plus 3p square minus 1 over 6 delta cube y minus 1 plus delta cube y minus 2 over 2 and it is so on। तो ये आगे भी टर्म्स आपके पास आएंगी, लेकिन आप देखें कि आपके टेबल में कहाँ तक डेल्टास के कॉलम आ रहे हैं। तो अगर हम अपने टेबल में देखें तो देयर इज द लास्ट कॉलम ऑफ डेल्टा 4, डेल्टा 4 तक आप जो है फार्मूले को लिख लें, अगली टर्म्स को आप बेशक इग्नोर कर दें। तो ये वाली जो टर्म है ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक लिख लें डेल्टा 4 बाय -2, क्योंकि उसके बाद हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है। तो यही हमारे जो है वो डोमिनेंट टर्म्स हैं जो हमारे
पहली चार टर्म्स आएंगी, पहले चार डिफरेंसेस। अब टेबल के अंदर हम देखते हैं ये वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंस टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट इज 2.3, ये हम टेबल के अंदर भी देखते हैं। दिस इज डेल्टा वाई माइनस 2, this is delta y minus 1 and this is delta y naught. So delta y naught is 2.3 and delta y minus 1 is 1.9. तो ये आगे आप देखें delta y minus 1 is 1.9. Similarly delta y minus 2 सॉरी delta square y minus 2 आप टेबल में से वेरीफाई कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0.4 and then delta cube y minus 2 you will get minus 0.1। तो जो जो हमारे फार्मूले के अंदर पुट होने हैं वो हम वन बाय वन लिखते जा रहे हैं। पहले डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू लिख ली, फिर डेल्टा वाई माइनस 1 की, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 की, फिर डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 और फिर डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 और इन द एंड डेल्टा 4 वाई माइनस 2 की वैल्यू आपके पास आ गई। ये आपने टेबल से वेरीफाई कर लेनी है, यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब ये सारे डिफरेंसेस आप पुट कर दें ऊपर फार्मूला के अंदर। अब इसमें तीन चीज़ें पुट होंगी, एक तो आपका एच पुट होगा, वो क्या है 1 है, दूसरा पी पुट होगा, पी क्या है 0.1, बाकी तमाम डेल्टाज आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम एज इट इज पुट कर देंगे। सिंस एच इज 1 and p is 0.1, so by using values in previous equation we have dy by dx at the point 3.1। ये आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद कैलकुलेटर पे इनको सॉल्व करें तो यू विल गेट द आंसर 2.165066667। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का एट 3.1। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप उसका फार्मूला लिखें पहले, d2y by dx एट 3.1 इट विल बी इक्वल टू 1 और एच स्क्वायर। ये आपने पिछले लेक्चर के अंदर डिराइव किया था, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यही फार्मूला होगा आपका। तो यहाँ पर भी देखिए हमने डेल्टा 5 तक लिख लिया है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, डेल्टा 4 तक ही काफ़ी है क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला ओपन करना होता है। तो डेल्टा 4 तक आप लिख लें, बेशक ये वाली टर्म आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। इसी तरह आगे भी और टर्म्स भी आ रही हैं, उनको भी हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है उनका। तो यहाँ पर भी अब हम जो है वो, एक तो एच हमारे पास 0.1 है, पी यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इट शुड बी ये गलती से कहीं लिखा हुआ है, एच आपका क्या है इस क्वेश्चन के अंदर 1 है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आप देख लें, और पी आपका क्या है 0.1, तो इसको आप सही कर लें। बाकी टेबल के अंदर आपको डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2, डेल्टा 4 वाई माइनस 1, ये आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये वैल्यू आप सेकंड डेरिवेटिव वाले फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस आंसर फॉर सेकंड डेरिवेटिव 0.93928333333। इट्स अप टू यू, आप कितनी एक्यूरेसी चाहते हैं, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आपको 5 डेसिमल का आ जाए तो फिर आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग करके आंसर देना होता है। ठीक है, तो इसको आप, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी मेथड की, जब एक्स एक्स नॉट की इक्वल हो तब किस तरह करना है, और जब एक्स एक्स नॉट की क्लोज हो तब किस तरह करना है, एक्स नॉट आपने किस तरह से चूज़ करना होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप ट्राई करें बाय यूजिंग स्टर्लिंग्स फार्मूला। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।